وزیر اعلیٰ پنجاب کا دوبارہ انتخاب 22 جولائی کو ہوگا۔ نئے الیکشن تک حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کا اتفاق۔ خوشی ہے کہ سیاسی حریف اتفاق رائے پر پہنچے۔ 3 ماہ سے جاری مسئلہ 3 سیشنز میں حل کر دیا۔ 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں شفافیت اور ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ عدالتی فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، ضمنی انتخابات اور 22 جولائی کو بھی کامیاب ہوں گے۔ چند لوگوں نے ذاتی انا کی تسکین کے لیے صوبے کو بحرانوں کی طرف دھکیلا، کبھی الیکشن کا التوا اور کبھی حلف برداری میں تاخیر۔ ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوامی مشکلات کا احساس ہے، مسئلے کے حل کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ 720 میگا واٹ کے کروڑ پن بجلی منصوبے کا کام شروع کر دیا۔ سابق حکومت نے پن بجلی منصوبوں میں جان بوجھ کر تاخیر کی، پاور پلانٹس کی مرمت بھی نہیں کرائی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو اسلام آباد میں ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ۔ کرال سے پمز ہسپتال تک 20 کلومیٹر طویل بلو لائن میٹرو بس سروس افتتاح کے لیے تیار۔ بھارا کہو سے پمز ہسپتال تک گرین لائن چلے گی۔ راول چوک فلائی اوور کی 31 جولائی تک تکمیل ہوگی۔ ایکسپریس وے کی بحالی اور توسیع منصوبے کا بھی جلد آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم کی بھارا کہو بائی پاس پر کام ترجیحی بنیادوں پر شروع کرنے کی ہدایت۔ میٹرو بس کے کرائے کم کر کے عوامی سہولت کے لیے مربوط نظام قائم کیا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ امریکی سفیر ڈونلڈ آرمنڈ بلوم کی وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری فریم ورک معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر زور۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور بھارت میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی لہر سے بھی آگاہ کیا۔ باہمی احترام اور مشترکہ مفاد پر مبنی پاکستان امریکہ تعلقات امن، ترقی اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہیں، صدر مملکت۔ سابق حکومت کی نااہلی، بد انتظامی، سی پیک دشمنی اور نیب گردی سے مسائل پیدا ہوئے۔ 1100 میگا واٹ کا K2 نیوکلیر پاور پلانٹ 10 جولائی سے پیداوار شروع کرے گا۔ 1214 میگا واٹ کا شنگھائی پاور پلانٹ دسمبر تک فعال ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں نومبر سے کمی شروع ہو جائے گی۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کی نیوز کانفرنس۔ صحافت زنجیروں میں لپٹی ہو تو جمہوریت بھی پابند سلاسل ہوتی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کسی پر احسان نہیں بلکہ آئینی حق ہے۔ میڈیا کی آزادی اور احساس ذمہ داری میں توازن سے معاشرتی تقسیم کو روکا جا سکتا ہے۔ فیک نیوز اور پروپیگنڈا نیوز روکنے کے لیے صحافتی تنظیموں کو فعال کردار ادا کرنا ہوگا، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ نہتے کشمیری بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا شکار، جون میں 35 افراد شہید کیے گئے، 104 نوجوان گرفتار۔ ماورائے عدالت قتل کے بڑھتے واقعات پر مقبوضہ وادی میں خوف و ہراس۔ حریت کانفرنس کی عالمی برادری سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بھارتی سپریم کورٹ کا بی جے پی رہنما نوپور شرما کو معافی مانگنے کا حکم۔ مخصوص ایجنڈے کے تحت گستاخانہ بیان دے کر سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا۔ نوپور شرما کی زبان درازی اور تکبر نے ملک میں آگ لگا دی۔ ٹی وی پر قوم سے معافی مانگی جائے، عدالت کا حکم۔ ملک کے بیشتر حصوں میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلا دھار بارش۔ آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں مانسون سپیل جاری۔ نشیبی علاقے زیر آب، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ سندھ اور بلوچستان میں آئندہ 3 روز کے دوران موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی، حیدرآباد، بدین، ٹنڈو الیار، تھرپارکر، عمرکوٹ اور دادو میں شدید بارشوں کا امکان۔ خضدار، سبی، آواران، نصیر آباد اور پنجگور میں بادل جم کر برسیں گے۔ متعلقہ اداروں کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ہدایات جاری۔ ایران کی جوہری معاہدے کے لیے امریکہ سے نئے مذاکرات پر آمادگی۔ جوہری مذاکرات کو انجام تک پہنچانے کے لیے پابندیاں ختم کرنا ہوں گی۔ بے بنیاد الزامات کا مقصد مذاکراتی عمل کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش ہے، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی۔
यूक्रेन पर रूसी हमले जारी। ओडिशा पर 2 मिसाइल हमलों में 17 अफराद लुकमाए अजल बन गए। रूस का बाल्टिक रियासतों और पोलैंड में अपनी हदूद के अतराफ नेटो सरगर्मियों पर इजहार तशवीश। ऐसे इकदाम से कशीदगी बढ़ेगी, वजीर खारजा सरगई लारोव। रंगारंग शेंदूर फेस्टिवल का आगाज। कैलाश के नौजवानों ने खूबसूरत रिवायती रक्स पेश किया। पैराग्लाइडर्स की शानदार परफॉर्मेंस। इफ्तिताही पोलो मैच में चित्राल की टीम ने गिजर को हरा दिया। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान जूनियर लीग का अक्टूबर में इनेकाद। तमाम मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में अजान ईशा का वक्त हुआ है। अजान ईशा सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। खबरनामे में खुशामदीद। और अब खबरें तफसील के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब का हुक्म देते हुए कहा है कि नए इलेक्शन तक हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में शफाफियत और ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम दिए हैं। तफसील बता रहे हैं एजाज हुसैन। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के पास 2 ऑप्शन हैं, 1-2 रोज में वज़ीर आला का इंतखाब हो या ज़िमनी इंतखाबात के नताइज तक हमजा शहबाज वज़ीर आला के मनसब पर रहें। मामला खुश उसलूबी से हल करने के लिए अदालत ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को तलब किया। पहले 2 वक्फों में फरीकों के माबैन इत्तफाक राय ना हो सका, जिसके बाद अदालत ने तहरीक इंसाफ के वकला को अपने मुवक्किल और
और पार्टी चेयरमैन से मशावरत करने का मौका दिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मौक्किल पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। चौधरी परवेज इलाही ने भी अदालत के पूछने पर हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम करने पर आमादगी जाहिर की। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि यह बात बाइस मुसर्रत है कि मुखालिफ सियासी जमातों ने ज़ाती मफादात की बजाय अवामी मफाद को मद्देनजर रखा। किसी के अना का नहीं, मुल्क व कौम का मसला है। मुखालिफ सियासी जमातों के माबैन इत्तफाक राय काबिल मुसर्रत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह का मसला 3 सेशन में हल कर दिया है। तहरीक इंसाफ की दलील पर रद्द अमल देते हुए अदालत ने कहा कि वो अपने फैसले में हमजा शहबाज के लिए निगरान वज़ीर आला नहीं, कोई मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करेगी। अपनी मौक्किल की हदायत पर हमजा शहबाज के वकील ने अदालत को बताया कि चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला के उम्मीदवार होने के बावजूद स्पीकर की हैसियत से आइन के मुताबिक अपने फराइज अंजाम दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री से वीडियो लिंक के जरिए अदालत के इस्तफसार पर हमजा शहबाज ने कहा कि अदालत उज़्मा का एहतराम करते हैं, जो भी फैसला होगा कबूल करेंगे। उन्हें कहा कि निज़ाम चलता रहना चाहिए। गुज़श्ता 3 माह में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। पंजाब असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर पर हमला किया गया और आईनी और कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। समाअत के इख्तिताम पर तहरीक इंसाफ की इस्तदा पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम को 17 जुलाई को पंजाब की 20 नशिस्तों पर साफ और शफाफ ज़िमनी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। इजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब की वज़ीर आला हमजा शहबाज ने अदालती फैसले को तस्लीम करते हुए कहा है कि 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात और 22 जुलाई को वज़ीर आला के इलेक्शन में कामयाब होंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चंद लोगों ने ज़ाती अना की तस्कीन के लिए सूबे को बहरानों की तरफ धकेला। कभी इलेक्शन का इल्तवा और कभी हलफ बर्दारी में ताख़ीर की गई। तफसील बता रहे हैं ताहिर कलासरा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। मेरे पास अरकान की मतलूबा तादाद मौजूद है। उन्होंने कहा कि पंजाब की आवाम को मुस्लिम लीग नून पर एतमाद है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो उम्मीदवार है उनका मौक़िफ़ अलग था, पीटीआई का मौक़िफ़ अलग था। अदालत उज़्मा जब ये केस की सुनवाई कर रही थी तो कहा जी अब मैं इमरान नियाज़ी से लेके आता हूँ, तो उनका आपस में भी सोच का रब्त नहीं था। सूबे की आवाम को कि अल्लाह के फजल व करम से जितने भी आइनी बहरान आए, मुझे आवाम की आसानियाँ पैदा करने के मंसूबों से अल्लाह के फजल से कोई रोक सका ना रोक सकेगा। और जितने दिन हूँ मुझे नहीं मालूम, उस रब को मालूम है, क्योंकि इज़्ज़त वो देता है। जब तक हूँ सूबे की आवाम की खिदमत करूंगा, ये मेरा वादा है सूबे की आवाम से। हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान नियाज़ी ने मुल्क को बहरानों के सिवा कुछ नहीं दिया। उनकी तमाम साजिशें आवाम के सामने आ रही हैं। इमरान खान ने पहले कानून तोड़ा, अब वो अपनी अना की खातिर इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। इमरान नियाज़ी ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं IMF के पास पहले क्यों ना चला गया। 6 महीने ज़ाया किए, सारा जो मार्केट सेंटिमेंट था फाइनेंशियल मार्केट का तबाह बर्बाद हो गया। 40% डॉलर जो है वो बढ़ गया रुपए के मुकाबले में। ये पेट्रोल की प्राइसेस, इमरान नियाज़ी एक तरफ IMF से वादे वईद कर रहा था और दूसरी तरफ आवाम को कह रहा था मैं सस्ता पेट्रोल दूंगा। मैं समझता हूँ कि ऐसी अना को अल्लाह ताला खाक में मिलाए। हमजा शहबाज ने कहा कि हम सियासत नहीं रियासत बचा रहे हैं। अल्लाह ने मौका दिया तो हम पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रखेंगे। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से अवामी मुश्किलात का एहसास है, मसले के हल के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। 720 मेगावाट के करोड़ पन बिजली मंसूबे ने काम शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत ने पन बिजली मंसूबों में जानबूझकर ताखीर की और पावर प्लांट्स की मुरम्मत भी नहीं कराई। मजीद तफसील क्या है, बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में जारी लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिशां हैं। दिन रात बैठे हैं, चाहे वो कोयला है चाहे वो गैस है, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह इंसानी हद तक। इसीलिए बैठे हैं कि सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाएँ। अब हालत यह है कि अगर आवाम के लिए जब एक बहुत शदीद गर्मी में जब उनको पंखा न चले तो वो बददुआएं देते हैं, अगर गैस काटते हैं सनतों से तो वहाँ पर हमारी जो मईशत जो है वो मुतासर होती है, अगर गैस काटते हैं फर्टिलाइज़र प्लांट से तो हमारा जो ज़राअत जो है उसको ख़तरा लाक होता है, अगर गैस काटते हैं टेक्सटाइल से तो हमारी जो एक्सपोर्ट जो हैं उनको धचका लगता है। तो इट्स अ
I mean, it's a very, very difficult challenge. वजीर आजम ने कहा कि तवानाई के बहरान को हल करना और लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है। माजी की हुकूमत की गफलत से मुल्क को तवानाई के मसाइल का सामना हुआ। पिछली हुकूमत को जब अल्लाह ताला ने एक मौका अदा किया था कि वो सस्ती तरीन गैस वो ख़रीदती, उसने अपनी मुजरमाना गफलत की बना पर जब गैस $3 या $4 पर स्पॉट मार्केट में मिल रही थी, वो उन्होंने सौदे नहीं किए। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म सौदे उस ज़माने में गैस के ये $5 या $6 पे हो सकते थे, वो नहीं किए। अगर वो उनको इतनी बसीरत होती, कौम की साथ हमदर्दी होती और अपने वक्त जो इल्ज़ामात पर ज़ाया न करते और हिज़्ब मुखालिफ के लोगों को वो दीवार से लगाने की जो दिन रात उनकी कोशिश थी, उससे आधा वक्त भी वो मईशत को ठीक करने के लिए, आवाम के दुखों को बांटने के लिए और कुछ रिलीफ देने के लिए वो वक्त सर्व करते, तो आज ये बदतरीन सूरत हाल कभी पैदा न होती। वजीर आजम ने कहा कि 1250 मेगावाट का प्लांट हवेली बहादुर शाह में साबिक हुकूमत की वजह से बंद पड़ा है। पन बिजली समेत तवानाई के मंसूबों में गुज़श्ता हुकूमत ने जानबूझकर ताखीर की और बिजली के प्लांट्स की मरम्मत का काम नहीं कराया। वो बंद पड़े थे, उन प्लांट्स को इन चंद महीनों में हमारी हुकूमत ने पूरी तनदेही से उनको रिपेयर करवा के उनको चालू करवाया। इसके साथ साथ ईंधन का बहुत बड़ा एक चैलेंज सामने बन के आया। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने जब $13 पर कतर के साथ डील की थी G2G, उस वक्त पिछली हुकूमत ने उसमें इतने इल्ज़ामात लगाए कि ख़ुद कतर के अवाम परेशान हो गए कि भाई इतना शफाफ एग्रीमेंट हुआ और उसके ऊपर एक बरादर मुल्क पाकिस्तान उसमें इल्ज़ामात लगा रहा है, तो उनका दिल कितना दुखी हुआ होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर $5 पे अगर ये हुकूमत जो अवेलेबल थी गैस अगर ये कर लेती लॉन्ग टर्म, तो आज पाकिस्तान के अंदर ना गैस का इतना बड़ा बहरान होता और ना ही लोड शेडिंग के हवाले से और ना ही इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के हवाले से इतना बड़ा क्राइसिस आता। वजीर आजम का कहना था कि अपने आवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तवानाई से मुतल्लिक अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि 720 मेगावाट के करोड़ पन बिजली मंसूबे ने काम शुरू कर दिया है। गुज़श्ता हुकूमत ने 4.25 साल इस मंसूबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। वजीर आजम ने बताया कि CPEC के तहत मुकम्मल होने वाला पन बिजली का ये पहला मंसूबा है जिसमें ताउन पर चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। आला सतह इजलास को मुल्क में तवानाई की सूरत हाल से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। मोहम्मद मीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऑरेंज लाइन मेट्रो बस फैज़ अहमद फैज़ टर्मिनल H9 एयरपोर्ट के तरफ तज़ीनो आराइश मुकम्मल करके 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में मेट्रो, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन पर पेशरफ्त और दारुल हुकूमत में जारी तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मेट्रो बस के किरायों को कम करके अवाम की सहूलत के लिए एक मरबूत निज़ाम कायम किया जाए। उन्होंने बाराकहू बाईपास पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू करने की हिदायत करते हुए कहा कि शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए मंसूबे की बिडिंग का अमल यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में बेहतरीन कंपनियों को तामीर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मंसूबे से मरी जाने वाले सयाहों को भी आसानी होगी। इजलास को बताया गया कि 29 किलोमीटर तवील ऑरेंज लाइन मेट्रो बस सर्विस को फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन से जोड़ा गया है। रश के औकात में मुसाफिरों की तादाद औसतन 18,000 यौमिया है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि कुराल से पिम्स तक 20 किलोमीटर तवील ब्लू लाइन मेट्रो बस सर्विस भी इफ्तिताह के लिए तैयार है। 13 स्टेशन पर मुश्तमिल रूट से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के अतराफ में बड़ी तादाद में मुसाफिर मेयारी और कम कीमत सफरी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। 15.5 किलोमीटर तवील ग्रीन लाइन मेट्रो बस सर्विस बाराकहू पिम्स और इस्लामाबाद से मरी जाने वाले सयाहों को सहूलत फराहम करेगी। इजलास को बाराकहू बाईपास मंसूबे पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर रावल चौक फ्लाईओवर 31 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार कौमी पॉलिसियों में अवामी शमूलियत के लिए इनोवेशन हब का क़याम अमल में लाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नौजवानों की आइडियाज़ को पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा। तफसील बता रहे हैं असद यार खान।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हदायत की रोशनी में मुल्क की तारीख में पहली मरतबा कौमी पॉलिसी में अवामी शमूलियत के लिए इनोवेशन हब का क़याम अमल में लाया गया है। इनोवेशन हब के जरिए वज़ीर आज़म के पॉलिसी बनाने के अमल में तमाम स्टेक होल्डर्स की राय को अहमियत मिलेगी। बासलाहियत और काबिल पाकिस्तानियों के आइडियाज को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा। इनोवेशन हब मुल्की व अवामी ज़रूरियात को हमांग बनाने में माविन साबित होगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आइडियाज की हौसला अफजाई करने वाली कौमें ही तरक्की की मनाजिल तय कर रही हैं। इनोवेशन हब अपनी तर्ज का मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें काबिल पाकिस्तानियों के आइडियाज को कौमी पॉलिसियों का हिस्सा बनाया जाएगा। बहुत ही काबिल हमारे पाकिस्तानी हैं, उनकी इंक्लूसिव कंट्रीब्यूशन उसका हमें बेपनाह फ़ायदा होगा कि आज की दौर में जो जदीद अलूम तहकीक और जो एक्सपर्टीज़ है उसकी बहुत कदर मंजिलत है। आपके जो ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं मॉडर्न एंड मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस डे एंड एज, इंशाअल्लाह हम उनको बिल्कुल डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। जो हमारी यूथ है पर्टिकुलरली उसकी जो सोच, उसकी जो आज के जो उसके आइडियाज़ जो हैं हम उनको उससे फ़ायदा हासिल करें। बड़ा इम्पोर्टेंट ये मरहला है, इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर भरपूर कमिटमेंट के साथ काम करेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी ने बताया कि इनोवेशन हब का मकसद पब्लिक पॉलिसी में आवाम की शमूलियत है। मुल्क भर और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से आइडियाज लिए जाएंगे। माहिरीन का एक पैनल इन आइडियाज का जायजा लेगा। यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम में बेहतरीन आइडिया का इंतखाब होगा जिसे वज़ीर आज़म इनाम से नवाजेंगे। डेवलपमेंट सेक्टर, सियाहत और IT के शोबों से मुंसलिक नौजवानों ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में अपने शोबों के मसाइल की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई। उन्होंने सियाहत के शोबे की तरक्की से मुतल्लिक अपने आइडियाज वज़ीर आज़म से शेयर किए। निसाब में जदीद टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मज़ामीन को ज्यादा से ज्यादा शामिल करने, खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक इक़दामात पर अमल दरामद और बर वक्त फैसला साजी के हवाले से तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को यकीन दिलाया कि वो ज़ाती तौर पर इस प्रोग्राम की निगरानी करेंगे और जो भी अच्छी तजवीज़ सामने आई उस पर अमल किया जाएगा। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ताजरों की तंजीम सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया के सदर जुनैद कुरैशी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और IT शोबे की तरक्की और इस $15 अरब तक बरामदात बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने जुनैद कुरैशी की काविशों को सराहते हुए कहा कि वो पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री के फ़रोग़ में अपना हिस्सा डालें। जुनैद कुरैशी ने टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी मुहिम के हवाले से बताया कि हुकूमत के लिए ये इंतहाई अहम है। मार्केटिंग मुहिम में ज़्यादा सरमायाकारी करके आलमी सतह पर नुमाया मकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने वज़ीर आज़म को सितंबर में सिलिकॉन वैली का दौरा करने और मशहूर तरीन टेक कंपनियों के रहनुमाओं से मुलाकात करने की दावत भी दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी फ्रेमवर्क मुआहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में नए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका के साथ बाहमी एहतराम, एतमाद, मफादात की बुनियाद पर वसी ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। उन्होंने कहा कि तिजारत, सरमायाकारी, IT और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन का भी फ़रोग़ चाहते हैं। पाकिस्तान अमरीका बिजनेस कॉन्फ्रेंस का रवां साल इनेकाद ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सफ़ीर को भारत में इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर और गुस्ताखाना बयानात से मुतालिक आगाह करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान और गुस्ताखाना बयानात से मुस्लिम उम्मा के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के बारे में आगाह करते हुए कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल बहुत ज़रूरी है। आलमी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा ताउन में इजाफा अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी अहमियत का हामिल है। उन्होंने डोनाल्ड ब्लूम को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देते हुए तवक्को जाहिर की कि दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए वो भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह भरपूर तरीके से मनाएंगे। अमरीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक के पाकिस्तान के लिए नामजद सफ़ीरों ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। सफ़ीरों ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को इस्लामाबाद में अपनी असनादे सिफारत पेश की। तफसील मोहम्मद मज़हर अब्बास से। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को अमरीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, भूटान और सूडान के नए तैनात होने वाले सफ़ीरों ने अवान सदर इस्लामाबाद में असनाद सफारत पेश कर दी। सदर मुमलिकत ने सफ़रा को पाकिस्तान में तकर्री पर मुबारकबाद पेश करते हुए तवक्को जाहिर की कि वो मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए कोशिशें करेंगे।
नए अमरीकी सफीर डोनाल्ड आर्मिन ब्लूम से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बाहिमी एहतराम और बहमी मफाद के असूलों पर मबनी तामीरी और पायदार रवाबित खित्ते में अमन, तरक्की और सलामती के फरोग के लिए नागुज़ीर हैं। इस साल पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीकी कंपनियों की जानिब से टेक्नोलॉजी के शोबे में मजीद सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद है। तुर्की के सफीर डॉक्टर महमद पाचाजी से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने दोनों ममालिक के दरमियान कश्मीर, शुमाली कब्रस, इस्लामोफोबिया और अफगानिस्तान समेत अहम मसाइल पर हम आहंगी पर इत्मीनान का इजहार किया। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकन्स से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज बुनियादी ढांचे की तरक्की, ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, कानकनी, मैन्युफैक्चरिंग, पानी और फजले के इंतजाम में सरमायाकारी कर सकती हैं। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तानी तलबा के लिए ऑस्ट्रेलिया में वसी तालीमी मौके पर इत्मीनान का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन की नामजद सफीर रेना कोइंका से गुफ्तगू में सदर मुमलिकत ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात तमाम शोबों में हम आहंगी के लिए मस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि GSP प्लस एक बाहिमी फायदामंद स्कीम है जिसने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की दो तरफा तिजारत की तोसी में अहम किरदार अदा किया है। सदर मुमलिकत ने सूडान के सफीर साले मोहम्मद अहमद मोहम्मद सदीक से गुफ्तगू करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात, दो तरफा ताउन, OIC और अक़वाम मुत्तहिदा में राबतों को सराहा। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंसदाद मनशियात के वफाकी वज़ीर शाह ज़ैन बुगटी ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में मुल्क की सियासी और मजमूई सूरत हाल और वजारत के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर ML वली खान ने भी इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF से जल्द मुआहिदा तय पा जाएगा। चेयरमैन FBR आसिम अहमद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जून में 763 अरब रुपए की रिकॉर्ड टैक्स वसूलियां हुई। माली साल 2021-22 की आखिरी सहमाही में टैक्स वसूलियों में 29% इजाफा हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि FBR ने आखिरी सहमाही में 1741 अरब रुपए के रिकॉर्ड टैक्स जमा किए और साल का 6100 अरब का टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया। पिछले महीने अल्लाह ताला की मेहरबानी से, FBR के लोगों की मेहनत से और टैक्स पेयर्स की मेहरबानी से हमने एक साथ 763 अरब रुपए जमा किए हैं, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। चौथे क्वार्टर के अंदर 1741 अरब रुपए जमा किए हैं हमने, जो कि पिछले साल के 1351 अरब रुपए के मुकाबले में 29% ज्यादा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के IMF के साथ मुआहदे को पूरा करने के लिए मौजूदा हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे जैसे मुश्किल फैसले करना पड़े। शौकत तरीन साहब साइन करके गए IMF से, लिखा हुआ ब्लैक एंड वाइट में है कि 30 रुपए लेवी लगानी थी और 17% सेल टैक्स लगाना था। उसके हिसाब से 51 रुपए सेल टैक्स बनता है, 30 रुपए लेवी बनती है, टोटल 81 रुपए बनते हैं। हमने 5 रुपए लगाया, इसका मतलब है कि यहाँ से 76 रुपए और महंगा होना था। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने कहा कि टैक्स नेट को वुसअत देने के लिए मजीद इक़दाम कर रहे हैं। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है, उसमें 2-3 तरीकों से हम उसको हमारी जो इंटरवेंशन है, एक तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो नादरा से हम डेटा शेयर हमने किया है। दूसरा, हमने जो ये फिक्स्ड सेल्स टैक्स का जो टियर 2 के रिटेलर्स हैं, तकरीबन 7 लाख नए ट्रेडर्स हैं, उनको हम सिस्टम पे लेके आएंगे। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है जो हमने सिगरेट्स पे आज 1 जुलाई से इन्फोर्स हो गया है। फर्टिलाइज़र सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर है, ये 2 सेक्टर्स हैं जिनकी हमने ट्रैक एंड ट्रेस में इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हुकूमत रवां साल GDP के तनासब से टैक्स वसूली को बढ़ाकर 9.2% तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि टैक्स अहदाफ के हुसूल के लिए FBR की कारकर्दगी काबिल तारीफ है, अभी हमें मज़ीद आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म ने अपने एक ट्वीट में कहा कि FBR की जानिब से 6100 अरब टैक्स हदफ का हुसूल खुशाइन और दीगर वजारतों के लिए अच्छी मिसाल है। वज़ीर आज़म ने बेहतर कारकर्दगी पर वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा और चेयरमैन FBR को मुबारकबाद दी। तवानाई के वफाकी वज़ीर इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान कहते हैं कि इमरान खान की नालायकी, CPEC दुश्मनी और नैब गर्दी की वजह से 3200 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल नहीं हो सकी। साबिक हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से आवाम को लोड शेडिंग का सामना है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इसकी तफसील बता रहे हैं राना शहजाद उस सलाम।
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران ملک بھر میں بجلی کی حالیہ لوڈ شیڈنگ کی وجوہات بیان کرتے ہوئے توانائی کے وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے عالمی منڈی سے سستے فیول کی خریداری کا موقع ضائع کر کے مجرمانہ غفلت کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کی نسبت بجلی کی طلب میں 30% ریکارڈ اضافہ ہوا۔ اس کے باوجود صنعتوں کو بلا تعطل بجلی فراہم کر کے عوام کے روزگار کا تحفظ کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں کو لوڈ شیڈنگ کی تکلیف کا سامنا ہے، اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو کہ ایک جامع وجہ ہے وہ عذاب عمرانی کی نالائکی، سی پیک دشمنی اور نیب گردی ہے۔ وسط اپریل سے گرمی کی ایک لہر آئی ہے، اس کی وجہ سے طلب میں غیر معمولی اضافہ ہے۔ اور تیسری وجہ لوڈ شیڈنگ کی وہ یہ ہے کہ کوئلے، گیس اور تیل کی جو بین الاقوامی قیمتیں ہیں ان میں ایک ہوش ربا اور بھیانک اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے ایک سوال پر کہا کہ عمران خان کے دور میں سی پیک کے منصوبوں کو جان بوجھ کر التوا کا شکار کیا گیا۔ توانائی کے شعبے میں عمرانی جرائم پر خود مختار کمیشن تحقیقات کرے گا۔ عمرانی جرائم تو بے شمار ہیں، لیکن ایک جرم جس کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے کہ کس طرح کیا نیپرا کو کے اوپر سیاسی دباؤ ڈال کر یہ جو قیمت ساتھ ساتھ پاس آن ہونی تھی، کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ بھی ہونی تھی، اور اب جو ری بیسنگ ہونی تھی 1 سال کے بعد وہ بھی نہیں ہوئی۔ ایل این جی جو ہے وہ $3 پر مہیا تھی، کیوں نہیں خریدی گئی؟ تاخیر کی وجہ سے پھر ہمیں مہنگی ایل این جی خریدنی پڑی۔ وفاقی وزیر توانائی نے کہا کہ رواں سال نومبر سے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں کہ سابقہ حکومت کی غلط قانون سازی سے ملک بحرانوں کا شکار ہوا، توانائی کے شعبے میں کسی کی اجارہ داری نہیں بننے دیں گے۔ توانائی کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے آئندہ مقامی وسائل پر انحصار کیا جائے گا۔ تفصیل بتا رہے ہیں راہیل انصار۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ ماضی کی حکومت نے توانائی منصوبے شروع کرنے کی بجائے پہلے سے جاری منصوبوں کو سبوتاژ کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے شمسی توانائی سمیت متبادل ذرائع کو عام کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ $40 پر یونٹ کا جو ہمیں ایل این جی کا بڈ آتی ہے، 2 سال پہلے یہ $4 یعنی $12-13 ملین کا جہاز مل رہا تھا، آپ نے کیوں نہیں لیا؟ اسی طرح گیس کی جو قیمت آپ کو بار بار اوگرا کی طرف سے آ رہی تھی تو کیوں نہیں بڑھائی؟ کمیشن کا کام ہے کہ یہ انالیسس کرے کہ ایسا سب کچھ کیوں ہوا، تاکہ آنے والے وقت کے لیے جس راہ کا ہم نے تعین کرنا ہے اس میں یہ پتھر نہیں ہمارے راستے آئے۔ وزیر مملکت پیٹرولیم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مقامی گیس ذخائر میں سالانہ 10% کمی ہو رہی ہے۔ گزشتہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے بجلی کی پیداواری لاگت بڑھی اور ملک بحرانوں کا شکار ہوا۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملک میں توانائی بحران گزشتہ حکومت کی ملک دشمن پالیسیز اور غلط فیصلوں کے باعث پیدا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی نااہلی اور غلطیوں کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں رضوان عارف کی یہ رپورٹ۔ ملک میں توانائی کا شعبہ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے اور اس کی واحد بڑی وجہ 2018 سے 2022 کے دوران ماضی کی حکومت کی لاپرواہی اور ناقص طرز حکمرانی ہے۔ کروڈ ہائیڈرو پروجیکٹ اور شنگھائی تھر پروجیکٹ گزشتہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی بدولت تاخیر کا شکار ہوئے۔ کروڈ ہائیڈرو اور شنگھائی تھر پروجیکٹس کی تکمیل سے بجلی کی پیداوار میں 1934 میگا واٹ کا اضافہ ممکن تھا، جس کو گزشتہ حکومت کی جانب سے مکمل نہ کیا گیا۔ پنجاب تھرمل پاور پلانٹ کو پی ٹی آئی کی حکومت نے 3 سال تک تاخیر کا شکار رکھا۔ ان تینوں منصوبوں کی تکمیل سے 3200 میگا واٹ بجلی نظام ترسیل میں شامل ہو سکتی تھی، اور آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ پاکستان کے عوام وسائل اور ذرائع ہونے کے باوجود توانائی بحران کا شکار ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا تو سی پیک انرجی فریم ورک کو سمجھتی نہیں تھی، یا پھر جان بوجھ کر ان اہم ترین منصوبوں کی رفتار کو انتہائی کم کر دیا گیا۔ کسی ملک کی معاشی خوشحالی کی بنیاد توانائی کا شعبہ ہے، جسے مضبوط کیے بغیر ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ صحافت زنجیروں میں لپٹی ہو تو جمہوریت بھی پابند سلاسل ہوتی ہے. میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی کسی پر احسان نہیں بلکہ آئین کا بنیادی تقاضا اور حق ہے. اسلام آباد میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحافیوں کا تحفظ اور پیشہ ورانہ سازگار ماحول فراہم کرنا اتحادی حکومت کی ترجیح ہے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ذمہ داری سنبھالتے ہی میڈیا مخالف قوانین اور ضابطوں کو ختم کرنے کا عمل شروع کیا. فریقین کی مزید مشاورت سے قانون سازی کے مسودے کو حتمی شکل دیں گے. اس مقصد کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ میڈیا کی آزادی اور احساس ذمہ داری میں توازن سے معاشرے میں بڑھتی تقسیم کو روکا جا سکتا ہے. اختلاف رائے اور نفرت کے درمیان فرق سمجھانے اور رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ میڈیا اداروں اور صحافیوں کو فیک نیوز اور پروپیگنڈا نیوز کو روکنے کے لیے فعال کردار ادا کرنا ہوگا. ناظرین، حکومت نے سرکاری اشتہارات کی تقسیم میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں. اس سلسلے میں وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کی صدارت میں اجلاس ہوا. یہ فیصلہ ہوا کہ صرف باقاعدگی سے شائع ہونے والے اخبارات اور جرائد کو منصفانہ اور شفاف طریقے سے اشتہارات جاری ہوں گے. اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ اخبارات و جرائد کی اشاعت کو تعداد کو جانپنے اور اشتہارات کی تقسیم کے لیے ڈیجیٹل نظام لایا جائے گا. اجلاس میں سینٹرل میڈیا لسٹ میں موجود اخبارات اور جرائد کی تفصیل اور ABC کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا. سوشل میڈیا جہاں مفید ہے وہاں اسے جھوٹے، بے بنیاد اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ حج انتظامات کو منفی دکھانے کے لیے بھی پروپیگنڈے کے طور پر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی ہے. عمران منصب خان کی رپورٹ میں جانتے ہیں. سوشل میڈیا پر مینا کے مقام کا نام لے کر حاجیوں کو مشکل میں دکھانے کی ویڈیو وائرل کی گئی، جبکہ حج کا رکن مینا شروع ہونے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں. سوشل میڈیا پر بغیر تصدیق جھوٹے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کا زمینی حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. پرانی ویڈیوز جو شیئر کی جا رہی ہیں اور اس کو امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ اس سچ میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ان چیزوں سے جو ہے نا وہ اس کو فردر شیئر کرنے سے اعتراض کریں، کیونکہ پروپیگنڈا اور فتنہ جو ہوتا ہے وہ دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی وہ ایک اچھی بات نہیں ہے. عازمین حج نے وزارت مذہبی امور کی جانب سے حج انتظامات پر بھرپور اطمینان کا اظہار کیا ہے. ریلیٹیوز ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کو بھی یہ لوگ اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں اس طرح کی غلط خبریں پھیلا کر، غلط ویڈیوز بنا کر، تو اس کی بھی میں مذمت کرتی ہوں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ حج کے فریضہ ادا کرنے آئے تو ہم اس طرح کی غلط کاموں سے خود کو روکیں. رہائش بولیں، کھانا بولیں، ٹرانسپورٹ بولیں، بہت اچھا ہے. یہ جو لوگ افواہیں اڑا رہے ہیں یہ سب غلط کر رہے ہیں. اگر ہم پوری دنیا کے حاجیوں سے ریٹ کمپیئر کرتے ہیں، انڈیا سے، افغانستان سے، الجزائر سے، اور ریالوں میں، اور اس میں ہم کرتے ہیں تو ہم نے سب سے زیادہ کم میں حج پاکستان کا پڑ رہا ہے. سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی اس پروپیگنڈے کا اولین مقصد وزارت حج کے بہترین انتظامات کو ہدف کا نشانہ بنانا ہے اور حجاز مقدس کی سرزمین پر موجود حاجیوں کے رشتہ داروں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا ہے. اس نفرت آمیز پروپیگنڈا کا تیسرا مقصد پاکستان اور سعودی عرب کے مابین انتہائی خوشگوار اور برادرانہ تعلقات کو متاثر کرنا ہے. سوشل میڈیا پر بہتان ترازی نے کئی عزاداروں کو رسوا کیا، کئی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ حج 2022 کے بہترین انتظامات کو ہدف تنقید بنا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ ایک افسوسناک امر ہے. عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی نیوز، مدینہ منورہ. پاکستان اور بھارت نے معاہدے کے تحت قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں قید 682 بھارتیوں کی فہرست انڈین ہائی کمیشن کے سپرد کی گئی. بھارت کی جانب سے نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کو فراہم کی گئی فہرست کے مطابق 461 پاکستانی باشندے بھارت میں قید ہیں. پاکستانی قیدیوں میں 345 عام شہری اور 116 ماہی گیر شامل ہیں. دونوں ملک 1 جنوری اور 1 جولائی کو قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں. بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ ماہ جون میں 35 بے گناہ کشمیری شہید کیے گئے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق شہداء میں سے 9 افراد کو جعلی مقابلوں کے دوران شہید کیا گیا. بھارتی فورسز نے گزشتہ ماہ نوجوانوں اور سیاسی کارکنوں سمیت 104 شہریوں کو گرفتار کیا، جن میں سے بیشتر پر کالے قوانین پبلک سیفٹی ایکٹ کو لاگو کیا گیا. فوجیوں نے اس عرصے کے دوران 8 مکانوں کو تباہ بھی کیا. کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر سے ایک بیان میں بھارتی فورسز کی طرف سے کشمیریوں کے قتل اور گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی میں بھارتی ریاستی دہشت گردی بند کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. مظلوم کشمیریوں کو 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی اہلکاروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے.
ताज़ा कार्रवाइयों में भारतीय फौजियों ने श्रीनगर और सोपोर के इलाकों से 5 बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मुमताज भारतीय सहाफ़ी राना अयूब को अमरीकी आज़ादी सहाफ़त का सबसे बड़ा अवार्ड जॉन अबूचन दिया गया। राना अयूब ने यह अवार्ड अपने साथियों मोहम्मद जुबैर, सिद्दीक कैपन और आसिफ सुल्तान के नाम किया, जो फस्ताई मोदी हुकूमत की मुस्लिम और अकलियत दुश्मन पॉलिसीज और मकबूजा कश्मीर में उसके मजालिम पर तनकीद की वजह से मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुस्ताखाना बयान पर बीजेपी की साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा पर इजहार बरहमी करते हुए माफी मांगने का हुक्म दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मुतनाज़ा बयान से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने नूपुर शर्मा की सरजनिश करते हुए इसे टीवी पर आकर कौम से माफी मांगने का हुक्म दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नूपुर शर्मा ने गुस्ताखाना बयान एजेंडे के तहत दिया जिसने कौमी सलामती को खतरे में डाल दिया है। नूपुर शर्मा के जज्बाती और गुस्से वाला मुतनाज़ा बयान उदयपुर में एक दर्जी के कत्ल का जिम्मेदार है। अदालत ने मजीद कहा कि नूपुर शर्मा की जुबान दराजी और तकब्बुर ने पूरे मुल्क में आग लगा दी है। नूपुर शर्मा और टीवी चैनल का ऐसे मामलात पर बात करने का मकसद मखसूस एजेंडे को आगे बढ़ाने के सिवा क्या हो सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की गुस्ताख रहनुमा को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया तो उसके वकील ने कहा कि नूपुर शर्मा पेश होने को तैयार हैं, जिस पर अदालत ने तंजिया कहा कि नूपुर शर्मा के लिए कमरा अदालत में सुर्ख कालीन बिछाए जाने चाहिए। सेनेट की उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की कायमा कमेटी का इजलास प्रोफेसर साजिद मीर की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के मामलात ज़ेर बहस आए। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने बताया कि आज़ाद कश्मीर के लिए एक निजी कंपनी हवाई सर्विस शुरू कर रही है। वजारत उमूर कश्मीर के हुकाम ने बताया कि LOC पर फायरिंग से जख्मी होने वालों के रिलीफ पैकेज पर कानून साजी कर रहे हैं। मजलिस कायमा ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की सजा के बाद मकबूजा इलाके की सूरत हाल पर भी गौर किया। इजलास में तरक्याती बजट के इस्तेमाल और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी है। तफसील बताएंगे अनीस अवान। मुल्क भर में मानसून बारिशों के आगाज से कई रोज से जारी गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। गुज़श्ता रोज गरज चमक के साथ होने वाली बारिश के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा हफ्ते भी वक्फे से जारी रहेगा। कोहलू समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बायस पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के पेश नजर PDMA ने तमाम महकमों को हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत की है। सूबे भर में डिवीजनल और इजला की सतह पर कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से होने वाली हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पुख्तनख्वा के बेशतर इलाकों पिशावर, कोहाट, मालाकंड और स्वाबी में मौसम जुज़वी अबर आलूद और मरतूब रहा। ताहम मानसेरा, एबटाबाद और हरीपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम सुहाना हो गया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। मानसून की पहली बारिश के बरसते ही कई रोज से जारी गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी आई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज के दौरान बलूचिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई की है, जिससे पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची समेत सूबा सिंध में कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बायस सूबे के मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तफसील अली असगर अरबाब से। बारिशों का भार से आने वाला नया सिस्टम 2 जुलाई से सूबा सिंध और बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज मूसलाधार बारिशों के बायस कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। ये अलर्ट इशू किया गया है कि इसके नतीजे में बहुत हैवी फॉल हो सकते हैं और एट टाइम्स वेरी हैवी फॉल्स भी हो सकते हैं। यानी वेरी हैवी फॉल्स का मतलब कि 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो सकती है। ये हैवी स्पेल है और 5 जुलाई तक ये परसिस्ट करेगा। हो सकता है 6 जुलाई तक भी कुछ एरियाज़ में, खासकर सदरन सिंध के कुछ एरियाज़ में 6 जुलाई तक भी प्रिवेल करे। नवाबशाह से आप नीचे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबको ही आप कह सकते हैं कि वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग किसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। कराची में बारिशों के नतीजे में पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए KMC की जानिब से हर मुमकिन इंतजाम किए गए हैं। हमने कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पर नई ड्रेन्स की ज़रूरत थी, सेवरेज सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत थी, उसके ऊपर काम किया है। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि इंतज़ामिया हरकत में होगी, इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड होगी, इंतज़ामिया काम करते हुए नज़र आ रही होगी और काम आपको नज़र भी आएगा।
सिंध के वज़ीर सईद मुराद अली शाह की जानिब से बारिशों से मुमकिन मुतासर होने वाले अजला की इंतजामिया को हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत की गई है। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। मौसमियाती तब्दीली की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ के पहाड़ पिघलना शुरू हो गए हैं। पानी के बहाव तेज होने से सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। देखिए वकार हैदर की ये रिपोर्ट। इस तेज पानी के बहाव को तो देखते ही आपके जहन में पहला ख्याल जरूर सैलाब का आया होगा। जिस खतरनाक अंदाज में ये बहाव जारी है, किसी कस्बा या देहात से गुजरता तो सब कुछ बहा ले जाता। लेकिन खुशकिस्मती और बरवक्त इकदामात की बदौलत ऐसा कोई भी साहना नहीं हुआ। स्कर्दू में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी कैफियत पैदा हुई, लेकिन DDMA और गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया के बरवक्त इकदामात से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। वजीर मौसमियाती तब्दीली ने अपनी ट्वीट में भी इसकी तरफ निशानदेही की है। हुंजा में भी गर्मी की शिद्दत से शेस्पर ग्लेशियर से पानी के बहाव में इजाफा हो गया है, जिसके बायस हर किस्म की ट्रैफिक को शाहराए नगर मुंतकिल किया गया है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम। मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। नाजरीन, कुछ बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के हवाले से। तो आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है और इस वबा से मजीद 2 अफराद जान बहक हो गए हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। तफसील मलिक उमर से। कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18,813 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 641 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के नए मरीजों की शरह 3.41% रिकॉर्ड की गई। NCOC की जानिब से खबरदार किया गया है कि आपके फैलने वाली वायरस की किस्म नई है और इसके खिलाफ किसी में भी कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं। वबा से बचाव का बेहतरीन हल एहतियाती तदाबीर है। कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज कोरोना वायरस डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट्स के खिलाफ बेहद मौसर है और हिफाजत जारी रखती है। हम सब की जिम्मेदारी है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के ठीक 5 माह बाद अपने करीबी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर से बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं और अगर बूस्टर डोज लगे 4 माह हो चुके हैं तो ज्यादा हिफाजत के लिए दूसरा बूस्टर डोज लगवाएं। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपने पैगाम में वाजे किया गया है कि इससे बचाव के लिए मौसर इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, समाजी फासले को यकीनी बनाएं, ईद-उल-ज़ुहा के दौरान मास्क का इस्तेमाल करें और ज्यादा हजूम वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र महकमा सेहत ने SOPs जारी कर दिए हैं। SOPs के मुताबिक तमाम शहरी अवामी मकामात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के दौरान मास्क पहनने के पाबंद होंगे, जबकि कारोबारी मराकज़ पर मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल यकीनी बनाने के साथ साथ आगाही पैगामात भी आवेज़ा करेंगे। जी नाज़रीन, आगे बढ़े हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की सदारत में कराची में कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे में कोरोना मरीजों की तादाद 4059 है, जबकि सिर्फ 63 मरीज अस्पताल में दाखिल हैं। हफ्तावार केसेस के तनासब से कराची में कोरोना केसेस की शरह सबसे ज्यादा है। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो तमाम SOPs पर अमल करें, फौरी वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लगवाएं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क को खुर्दनी तेल में खुद कफील बनाना तरक्याती एजेंडे का हिस्सा है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए विफाकी वजीर ने कहा कि खुर्दनी तेल में खुद किफालत के लिए प्राइवेट सेक्टर को मुतहर्रिक किया जाए। इस मकसद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर एक हफ्ते में रोड मैप तश्कील दें। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में खुर्दनी तेल की तलब 45,17,000 मेट्रिक टन है, जिसमें से सिर्फ 8% मुल्क की पैदावार से पूरा हो रहा है। 92% खुर्दनी तेल की दरामद पर $4.5 अरब खर्च होते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी महकमा ख़ारजा के तिजारती और कारोबारी उमूर के खुसूसी नुमाइंदे दिलावर सैयद ने मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अवामी और तिजारती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी कंपनीज के लिए पाकिस्तानी मंडियों में सरमायाकारी करने के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इदारे की पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम किया।